चैम्प्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं बिजनेस स्टडीज़ के हर चैप्टर से आपके लिए एमसीक्यूज, केस स्टडीज़ और रिवीजन वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर चैप्टर कॉल्ड प्लानिंग, विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Name the function of management which involves setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve these objectives. I feel it is very easy. Planning में जो process पढ़ते हैं आप, setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating the alternative courses of action, right, and then selecting. So this is definitely planning. आगे देखते हैं, which of the following is not a benefit of planning? Okay, benefit यानी importance. So let us first revise the importance of planning. Planning provides direction. Planning reduces the risk of uncertainty. It avoids overlapping in wasteful activities, promotes innovative ideas, facilitates decision making, and establishes standards for controlling. Right? तो हमें बताना है इसमें से कौन सा benefit नहीं है. सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये फीचर है, इम्पॉर्टेंस नहीं है. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग? रिवाइज करते हैं, आप भी बोलिए मेरे साथ साथ. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग इन वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग और एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. तो इसमें से कौन सा बेनिफिट है? Helps in avoiding confusion and misunderstanding? Yes. In fact, यही तो हम पढ़ते हैं उसमें कि it avoids overlapping in wasteful activities. Ensures clarity in thought and action. Yes, that is the benefit of planning. Useless and redundant activities are minimized or eliminated. Yes, wasteful activities मतलब जो useless काम है वो planning से हम minimize कर सकते हैं. So, all of the above. आगे देखते हैं. Which of the following statements is not true with reference to planning? Not true. Planning is a prerequisite for controlling. Yes, क्योंकि planning में ही हम standard set करते हैं जिससे फिर हम actual performance compare करके deviations find करते हैं at the time of controlling. Planning does not lead to rigidity. नहीं भाई, planning leads to rigidity and that is one of the limitations of planning. Planning enables a manager to look ahead and anticipate changes. Yes, planning is futuristic. Planning facilitates coordination among departments. Yes, तो सही आंसर है कि जो not true है, that is planning does not lead to rigidity because it does. Right. What is known as the primary function of management? Of course, planning. और क्या functions है? Planning, organizing, staffing, directing, controlling. पता ही होगा, आपके chapters के नाम है. Right. Which of the following is not a feature of planning? तो पहले features revise करते हैं. So planning focuses on achieving objectives. It is a mental exercise. It involves decision making. It is futuristic, pervasive, continuous. Right. So ये सारे features हैं. तो देखते हैं. इसमें planning establishes standards for controlling. Actually ये feature का point नहीं है, ये importance का point है. Right. So this is not a feature of planning. आगे देखते हैं. All other managerial functions are performed within the framework of the plans drawn. Identify the related feature. तो किस फीचर में ये कहा गया है कि जो प्लान्स आपने बनाए हैं उसी के बाउंड्री में बाकी सारे फंक्शंस भी किए जाते हैं. सो ऑफ कोर्स प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये पहला फंक्शन है और बाकी सारे फंक्शंस इसी को देख के किए जाते हैं. Alright, आगे चलते हैं चैम्प्स. Planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. Planning is a mental exercise. Planning बहुत सोच समझ के बहुत intellectual activity होती है. ये कोई guesswork या wishful thinking नहीं होती कि काश ऐसा हो जाए. नहीं. It involves a lot of calculations, lot of thinking. Right? So this is a mental exercise. आगे देखते हैं. प्लानिंग के नॉट फोरसी एवरीथिंग. हम सब कुछ तो नहीं देख सकते भविष्य में क्या होने वाला है. एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग. इसलिए ऑफ कोर्स कई बार हम ठीक से प्लान नहीं कर पाते हैं. दिस इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. और ये कौन सी लिमिटेशन है?
Planning leads to rigidity. Planning may not work in a dynamic environment. Planning does not guarantee success. Planning reduces creativity. तो इसका सही आंसर है planning may not work in a dynamic environment, because चीज़ें इतनी बदलती रहती हैं, इतने सारे changes होते रहते हैं environment में कि कई बार हम effective तरह से planning नहीं कर पाते. Okay, I'll show you this in your book also. Planning may not work in a dynamic environment. Here, यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है कि planning cannot foresee everything and thus there may be problem या obstacles to effective planning. I hope you can see that. Okay, आगे चलते हैं. It is not always true that just because a plan has worked before it will work again. ये कौन सी limitation है? Planning does not guarantee success. लिखा है clearly कि managers have a tendency to rely on previously tried and tested plans. But just because a plan worked before does not mean that it will work again. Right? आपके friend बोलते हैं, आपके senior बोलते हैं कि बस मैंने तो 10 year papers कर लिए और मेरे 80% से ज़्यादा marks आ गए. You cannot really rely on it. Just because it worked पहले does not mean it will work again. Also, we don't know if that person is lying or not. So planning does not guarantee success. Okay. Identify the correct sequence of steps involved in the planning process. Of course, बड़ा simple है. Steps है, sequence में है, setting objectives, developing premises मतलब assumptions जिनके basis पर plans बनाए जाते हैं, identifying alternative courses of action. पहले आप देख रहे हो क्या क्या मेरे पास options हैं, फिर आप हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स स्टडी कर रहे हो, मतलब इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन. ठीक है, तो इसमें से हमें बस करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है. सो ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट दिस इज सी. इसमें सब कुछ लाइन वाइज है. राइट? ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग. तो ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स द एंड, मतलब जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, दोज आर ऑब्जेक्टिव्स. हम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स दैट वी वांट टू रीच. एंड प्लानिंग का भी वही एंड है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. देन अ स्ट्रैटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम. स्ट्रैटेजी क्या होती है? रणनीति, तरकीब, हाउ टू बीट आवर कंपेटिटर्स. हम अपनी स्ट्रैटेजी अपने ऑब्जेक्टिव से डिफाइन करते हैं. मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज सेल्स या टू अर्न दिस मच परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो स्ट्रैटेजी जो आप बनाते हो वो अपने ऑब्जेक्टिव से डिराइव करते हो. राइट? देन अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, यस, which will not include this dimension. तो मैं आपको दिखा दूं स्ट्रैटेजी में जो 3 डायमेंशंस हम पढ़ते हैं. Here, I hope you can see. This comprehensive plan will include 3 dimensions: determining long-term objectives, yes, adopting a particular course of action. अब रणनीति के लिए आपको एक particular course of action choose करना पड़ सकता है to beat your competitors. Then allocating resources necessary to achieve the objective. So these are the 3 dimensions जो आपको पता होनी चाहिए. A strategy is a comprehensive plan which will not include this dimension. Determining long-term objectives तो dimension है, adopting a particular course of action भी, allocating resources भी. So what is not the dimension? The ends which the management seeks to achieve by its operations. Right? और ये जो लाइन है द एंड्स विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव की लाइन है. अभी हम बात भी कर रहे थे इस बारे में. दे आर डिफाइंड एज एंड्स विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव. सो दिस इज अ लाइन फॉर ऑब्जेक्टिव्स, नॉट फॉर स्ट्रैटेजी. ओके. दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स. 2 हिंट मिल रहे हैं कि जो आंसर है वो जनरल टर्म्स में होता है, पॉलिसी, और वो स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करने का बेसिस प्रोवाइड करता है. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मान लीजिए हम कोई रणनीति बना रहे हैं अपने कंपेटिटर्स से आगे निकलने के लिए, और हमारी पॉलिसी है, लेट्स से जस्ट अ कैजुअल एग्जांपल, ऑनेस्टी इज आवर पॉलिसी. वी यूज ऑनेस्टी. तो हम जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें हम ऑनेस्टी को यूज करेंगे, मतलब कोई अनफेयर मीन्स से हम कंपेटिटर्स से आगे नहीं निकलेंगे.
Right. So policy provides the basis for interpreting strategy. This is a very important line that you must remember. And policy is also stated in general terms. जैसे rules are very specific. Policy is a general term. Right. Then they detail the exact manner in which a work is to be done. तो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है टाइप्स ऑफ प्लान से रिलेटेड जो वीडियो है आप प्लीज देखिएगा, दैट इज वेरी हेल्पफुल. तो एग्जैक्ट मैनर इज द कीवर्ड फॉर प्रोसीजर. एग्जैक्ट मैनर, स्टेप्स इन विच अ वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड. देन इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी. वैसे तो ये बड़ा ही वेग सी लाइन है, इससे क्या हम आंसर डिफाइन करें, बट अगेन ये मेथड है. अगर हम सही मेथड चूज करते हैं तो वी आर एबल टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट. आई विल शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो. लाइक देर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग अ जॉब. यहाँ पे आपको मिलेगी ये लाइन हियर. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी. जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कई मेथड्स हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब. सही मेथड अगर आप चूज करेंगे तो इट विल सेव योर टाइम, मनी एंड एफर्ट. It is the plan which quantifies future facts and figures. Quantifies future facts and figures. Budget, जैसे गवर्नमेंट बजट भी क्या होता है कि फ्यूचर में, कमिंग ईयर में क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर हो सकते हैं. सो क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स इज डेफिनेटली बजट. ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान. पहले तो मैं आपको बता दूं जो आपकी ये टोटल 8 प्लान्स है, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल, स्ट्रैटेजी, दीज आर, इसमें से कुछ सिंगल यूज है, कुछ स्टैंडिंग है. तो मैं आपको बता देती हूँ. सिंगल यूज मतलब जैसे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उसके बाद वो स्क्रैप हो जाते हैं. सिंगल यूज है बजट, जैसे एक वीक के लिए बनाया जाता है, एक मंथ के लिए, एक ईयर के लिए. देन वी हैव प्रोग्राम या प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट आपकी बुक में अलग से नहीं दिया हुआ बट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोग्राम. जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, दैट इज अ प्रोग्राम. और स्टैंडिंग में आ जाते हैं आपके पॉलिसीज. सो पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान. देन प्रोसीजर, फॉलो करते रहते हैं आप ये ओवर एंड ओवर अगेन. मेथड, रूल, ये सब स्टैंडिंग प्लान्स हैं. जैसे नो स्मोकिंग, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो, नहीं, दिस विल कंटिन्यू. एंड कुछ होते हैं जो ना ही सिंगल यूज की कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ना ही स्टैंडिंग. एंड दोज आर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी. राइट. अब वो पूछ रहे हैं इसमें से स्टैंडिंग प्लान कौन सा नहीं है. पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, ये तो स्टैंडिंग है, अभी मैंने आपको बताया है. तो प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान. तो बजट है, प्रोग्राम है, मेथड जो है वो सिंगल यूज नहीं है, दैट कीप्स ऑन गोइंग ऑन. एक मेथड है ट्रेनिंग का, जैसे सपोज जो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए हम सेमिनार्स वाला तरीका यूज करते हैं टू ट्रेन देम, एंड दिस विल कंटिन्यू टू गो ऑन. सो दिस इज अ स्टैंडिंग प्लान. Okay champs, let's move on. Micromax was India's largest seller of mobile handsets. It launched low-cost Chinese manufacturing with some smart packaging and features like long-lasting batteries and dual SIM functionalities to garner 20% market share in India's value-conscious mobile handset market. Identify 2 types of land. Definitely objective तो दिख ही रहा है कि आपको 20% market share garner करना है, और उसके लिए उन्होंने कुछ तरकीबें यूज की हैं, लाइक वेरी स्मार्ट पैकेजिंग, फीचर्स लाइक लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज. तो ये क्या है, तरकीब है, स्ट्रैटेजी है. सो 2 प्लान्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द अबव केस स्टडी, वो है स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव. आगे देखते हैं. सो चैम्प्स, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द MCQs फ्रॉम प्लानिंग. मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम और MCQs डिस्कस करेंगे. राइट. According to a survey, these days young children have more power in purchasing decisions than ever before. The parents seek their kids' opinions about all kinds of one's adult decisions, including where to go for dinner, what kind of car to buy, even what to wear. Very interesting कि आजकल बच्चों की सलाह ली जाती है. कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं, जो पहले सिर्फ बड़े ही डिसीजंस लेते थे, आज उसमें बच्चों का बड़ा इंपॉर्टेंट से है.
Therefore, the retailers are adapting to this by enhancing their kids sections. If the children want to shop in the store for their clothes, then there's a greater chance the parent will also see something they want to buy as well. Right. Identify the type of plan. तो फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली है कि जो किड्स का सेक्शन है उसको हम थोड़ा और इम्प्रूव करें वहाँ पे बिकॉज आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, और वहाँ पे हम कुछ पेरेंट्स के लिए भी रख दें क्योंकि पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं, अच्छा तुमने जो लेना है ले लो, और मीनवाइल पेरेंट्स के पास भी थोड़ा टाइम होता है, दे कैन ऑल्सो लुक फॉर थिंग्स दैट दे वुड लाइक टू बाय. सो दिस इज सच अ नाइस तरकीब, स्ट्रैटेजी है ये. राइट चैम्प्स, तो आई होप आपने कुछ सीखा. प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड मैंने टाइप्स ऑफ प्लान्स पे एक इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने बहुत सारी केस स्टडीज डिस्कस की है क्योंकि आप बच्चे कह रहे थे कि टाइप्स ऑफ प्लान्स पहचानने में प्रॉब्लम होती है. और प्लानिंग से रिलेटेड अदर देन टाइप्स ऑफ प्लान्स भी मैंने केस स्टडीज का वीडियो बनाया हुआ है. सो डू वॉच इट. आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं. आई कीप मीटिंग यू frequently, so I'll see you in my next video.